بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، کسی گاؤں میں ایک برہمن رہتا تھا۔ وہ بڑا عالم اور نیک چلن تھا۔ اس کی بیوی بہت شریف اور گھر کے کام کاج میں بہت ہوشیار تھی۔ ان کے صرف دو ہی بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ماں باپ اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کو نیک صفت اور نیک چلن بنانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اگرچہ لڑکا بڑا تھا پھر بھی لڑکی زیادہ ہوشیار تھی۔ ماں باپ کو اس سے خاص محبت تھی۔ لڑکی رفتہ رفتہ بڑھنے لگی اور بیاہ کے قابل ہو گئی۔ ماں باپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لڑکی اتنی جلدی بیاہ کے قابل ہو جائے گی۔ انہوں نے کبھی خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے۔ ایک دن جب اپنی ماں کے پاس کھڑی تھی وہ، تو اسے دیکھ کر ماں کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ قد میں اس کے برابر ہو گئی ہے اور اب اس کے بیاہ کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی دن شام کو برہمنی نے اپنے شوہر سے کہا، لڑکی بیاہ کے قابل ہو گئی ہے، اب اس کی بیاہ کی فکر کرو۔ برہمن بھی لڑکی کو اتنی جلدی سیانہ ہوتے دیکھ کر دنگ رہ گیا اور بیوی سے کہنے لگا، تم ٹھیک کہتی ہو، اب مجھے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ کہہ کر برہمن فکر میں ڈوب گیا۔ اس نے جنتری اٹھائی اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بیاہ کی نیک گھڑی کون سی ہے۔ جنتری دیکھنے پر معلوم ہوا کہ بیاہ اسی مہینے کو بنتا ہے۔ اگلے 3 سال تک بیاہ کا لگن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہوئی۔ برہمنی نے اسی گھبراہٹ کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ لڑکی کا بیاہ اسی مہینے میں ٹھیک بنتا ہے، آگے 3 سال تک بیاہ کا لگن ٹھیک نہیں ہے اور اس مہینے میں بیاہ کے لیے صرف ایک دن اچھا ہے، اجالے پندروالے کی 5ویں۔ یہ سن کر برہمنی بھی بے چین ہو گئی۔ کچھ دیر سوچ کر بولی، ابھی تو 15 دن باقی ہے، اگر ٹھیک طرح سے کوشش کی جائے تو ان دنوں میں رشتہ ڈھونڈا جا سکتا ہے اور اسی مہینے بیاہ بھی ہو سکتا ہے۔ 3 سال تک تو ہم نہیں رک سکتے، لڑکی کافی بڑی ہو گئی ہے۔ برہمن بھی فکر میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا، میری بیوی ٹھیک کہتی ہے، 3 سال تک نہیں رکا جا سکتا۔ اس نے نائی کو بلایا اور لڑکی کے لیے فوراً رشتہ ڈھونڈنے کو کہا۔ اس نے نائی کو صاف بتا دیا کہ لڑکی کا بیاہ 3 سال تک نہیں بنتا، اس لیے جلدی سے جلدی کوئی قابل رشتہ ڈھونڈنا ہے اور بیاہ اسی مہینے کی 16ویں تاریخ کو کرنی ہے۔ جو حکم ہو سرکار، کہہ کر نائی وہاں سے چلا گیا اور رشتے کی تلاش میں نکل پڑا۔ نائی چلتے چلتے گاؤں میں پہنچا۔ وہاں اسے ایک اچھا پڑھا لکھا اور قابل برہمن نوجوان مل گیا۔ نائی نے اس سے اچھا رشتہ سمجھ کر پکا کر دیا اور بیاہ کے لیے اجالے پندروارے کی 5ویں کا دن مقرر کر کے واپس آ گیا۔ ادھر نائی کے گھر سے جاتے ہی برہمن کے دل میں طرح طرح کے خیالات اٹھنے لگے۔ وہ سوچنے لگا، آخر نائی ہی تو ہے، پتہ نہیں میری شریف اور نیک لڑکی کے لیے کیسا رشتہ دیکھا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، اگر غلطی ہو گئی تو درست بھی نہیں کی جا سکے گی۔ ساتھ ہی بیاہ کا رشتہ ایک ایسا پاک رشتہ ہے کہ دلہا دلہن کا عمر بھر کا ساتھ ہے، 2 زندگیوں کا آخر تک کا ساتھ ہے۔ میں نے بڑی غلطی کی جو نائی کو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا۔ جس لڑکی کو میں اتنا پیار کرتا ہوں، کیا اس کے لیے کچھ بھی قربانی نہیں کر سکتا؟ رشتہ ڈھونڈنے میں خود جاؤں گا، لڑکی چاہے نہ بیاہی جائے یا کنواری رہ جائے، مگر جب تک میری مرضی کا رشتہ نہ ملے گا میں اس کا بیاہ نہیں کروں گا۔ یہ سوچ کر برہمن اٹھا اور اپنی بیوی کو اپنا ارادہ بتا کر رشتہ ڈھونڈنے کے لیے چل دیا۔ ایک گاؤں میں اسے قابل رشتہ مل گیا جیسا وہ چاہتا تھا۔ اس نے اس کا رشتہ پکا کر دیا اور بیاہ کی تاریخ بتا کر چلا آیا۔ ادھر برہمن کے گھر سے جاتے ہی برہمنی کو بہت بے چینی ہوئی۔ وہ سوچنے لگی، نائی تو بے وقوف ہوتا ہے، اسے کیا خبر کہ ہمارا گھرانہ کتنا عزت دار ہے۔ میری لڑکی تو گلاب کا پھول ہے، اندھیرے میں بھی اجالا کر دینے والی ہے۔ اگر نائی کوئی غریب گھر یا بدصورت رشتہ دیکھا ہے تو میری لڑکی کرکرا کر ہی مر جائے گی، میرا دل بھی عمر بھر جلتا رہے گا۔ میرے پتی نے بہت برا کیا جو نائی کو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور خود ہی رشتہ ڈھونڈنے چلے گئے، لیکن اس سے بھی کیا ہوگا، وہ بھی کون سا میری پسند کا رشتہ دیکھ کر آئیں گے۔ میں جانتی ہوں وہ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں گے کہ لڑکا پڑھا لکھا اور تندرست ہے، چاہے اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، انہیں کیا خبر کہ عورتیں کیا کیا چاہتی ہے۔ میں تو ایسا لڑکا چاہتی ہوں جو خوبصورت، تندرست، دولت مند ہو، فراخ دل اور نیک چلن ہو۔ پڑھا لکھا ہو لیکن خوبصورت نہ ہو وہ تو بیکار ہے، کہیں جلدی میں غلطی نہ ہو جائے، اس لیے میں خود رشتہ ڈھونڈنے جاؤں گی۔ میرے پتی نے میری سب باتیں مانی ہیں تو کیا یہ چھوٹی سی بات نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں، میں زبردستی ان سے اپنی بات منوا لوں گی۔ کیا لڑکی پہ میرا کوئی حق نہیں ہے؟ میں نہ نائی کی بات کو مانوں گی اور نہ پتی کی، یہ تو لڑکی کے لیے عمر بھر کا سوال ہے۔ یہ سوچ کر برہمنی نے اپنے لڑکے کو اپنے پاس بلایا
और उसे सारा हाल बताकर लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने चल पड़े। रिश्ते की तलाश में वह एक गांव में पहुंची। वह जैसा रिश्ता चाहती थी उसे वैसा ही मिल गया। उसका रिश्ता पक्का करके वह ब्याह की तारीख मुकर्रर करके घर वापस आ गई। उधर इसके घर से जाते ही लड़की का भाई सोचने लगा कि नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उससे रिश्ता ढूंढने के लिए कहा गया है, वह रिश्ता ढूंढ देगा, फिर चाहे वह कैसा ही हो, रिश्ता ढूंढने के बाद इसका फर्ज पूरा हो जाता है, बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारी जरूर है लेकिन ज्यादा नहीं, वह तो अपनी मर्जी का रिश्ता ढूंढेंगे। मेरा बाप यह देखेगा कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माँ यह देखेगी कि लड़का खूबसूरत और दौलतमंद हो, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। माँ बाप तो बेटी को ब्याह कर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, बहनोई साहब और उसके खानदान वालों से बाद में तो मुझे ही पाला पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए जो रिश्ता देखा जाए वह मिजाज का अच्छा हो, मिलनसार हो, उसके खानदान वाले मजहबी हो और शरीफ हो, जिससे मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई तकलीफ ना हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ ना हो। लड़का पढ़ा लिखा भी हो और खूबसूरत भी हो और दौलतमंद भी हो, लेकिन मजहबी और शरीफ ना हुआ तो घर में हमेशा परेशानी रहेगी और बहन की जिंदगी दोभर हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी मर्जी का रिश्ता ढूंढूंगा। माँ बाप बेशक ही नाराज हो जाए, उन्हें कितने दिन इस दुनिया में रहना है, यह सोचकर वो उठा और घर को नौकर के हवाले करके रिश्ता ढूंढने चल पड़ा। एक गांव में उसे भी अपने पसंद का रिश्ता मिल गया और वह इसका रिश्ता पक्का करके और ब्याह की तारीख मुकर्रर करके घर वापस आ गया। नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुंचे। आपस में बातचीत करने के बाद मालूम हुआ कि चारों चार गांव में 4 रिश्ते तलाश करके आए हैं और सबको शादी की एक ही तारीख दे आए हैं। जब यह बात जाहिर हुई तो ब्राह्मण को बहुत फिक्र हुई। उसने नाई से कहा, फौरन तीनों गांव में जाकर रिश्ता तोड़ आए, सिर्फ वही रिश्ता पक्का समझा जाएगा जिसे मैंने खुद पक्का किया है। नाई शशोपंज में पड़ गया। वो हाँ करके ना करना ठीक नहीं समझता था। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे और कल उसे रद्द कर दे तो समाज में उसकी क्या साख रहेगी, इसलिए वह अपने किए हुए रिश्ते को रद्द करना नहीं चाहता था। वह इन तीनों रिश्तों को रद्द करने चला गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके बेटे ने पक्के किए थे। इसने तीनों जगह पर जाकर ब्राह्मण का पैगाम सुना दिया, लेकिन वह समझे कि बहकाने वाला समझकर किसी ने इसकी बात ना मानी और ब्याह की तैयारी करते हुए उन्होंने सोचा कि रिश्ते को वही रद्द कर सकता है जिसने उसे पक्का किया है। यह कोई लड़की वाले का दुश्मन मालूम होता है। जब ब्याह का दिन आया तो ब्राह्मण ने ब्याह की तैयारियां मुकम्मल कर ली, लेकिन शाम को जब 4 बारातें देखी तो घबरा गया। सोचने लगा नाई को मना करने के लिए भेज दिया था, फिर भी यह लोग किस तरह आ गए। तो लड़की एक और 4 दूल्हे, मेरी कैसी बदकिस्मती है, अब मुझे डूब मरने के लिए भी जगह मुयस्सर नहीं है। ऐ भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे यह दिन देखने को मिला। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, यह सोचते ही ब्राह्मण बेचैन हो गया और शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए खुदकुशी करना ही इसने सबसे अच्छा इलाज समझा। वह आहिस्ता से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने का ख्याल से चल दिया। जब कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधर आ निकला। सन्यासी ने उससे पूछा, तो इस सुनसान जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है? ब्राह्मण ने सन्यासी से सारा हाल कह सुनाया। सन्यासी बोला, खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी मुश्किल हल कर दूंगा। ब्राह्मण सन्यासी के साथ हो लिया। रास्ते में एक कुतिया मिली जिसने अभी अभी 3 बच्चे दिए थे। सन्यासी ने एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए ब्राह्मण से कहा, इसे उठा लो। ब्राह्मण ने कुतिया के एक बच्चे को उठाकर झोली में डाल लिया और रास्ते में उसे एक सुवर्णी मिली, उसने भी अभी 3 बच्चे दिए थे। सन्यासी बोला, इसका भी एक बच्चा उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर झोली में डाल लिया और जब आगे चला तो एक गधी मिली, इसने भी अभी अभी 3 बच्चे दिए थे, उनमें से एक मादा बच्चा था। सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने गधी के बच्चे को भी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुंचे। सन्यासी ने कहा, इन तीनों बच्चों को एक कोठे में बंद कर दो और अपनी लड़की को भी इसी में बंद कर दो, जब तक मैं ना कहूं कोठा ना खोलना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, चारों को एक कोठे में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी बोला कि चारों दूल्हों को बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक दूल्हा को बुलाया। सन्यासी की इजाजत से कोठे का ताला खोला गया, लेकिन सब लोग यह देखकर हैरान रह गए कि अंदर एक ही रंग, रूप और उम्र की 4 लड़कियां बैठी हुई है।
उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया, उसका ब्याह कायदे के मुताबिक आए दूल्हे के साथ कर दिया गया। इसी तरह बाकी के तीनों लड़कियों का ब्याह भी तीनों दूल्हों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने 4 बारातियों की अच्छी तरह खातिर की और सुबह होते ही चारों को रुखसत कर दिया। चारों दूल्हे बहुत खुश थे और चारों के चेहरे पर फतह का जज्बा झलक रहा था। उनमें से हर एक यह समझ रहा था कि ब्राह्मण ने लड़की का ब्याह मेरे साथ ही किया है और बाकी तीनों दूल्हे नाउम्मीद होकर जा रहे हैं। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था कि लड़की एक ही है और बारातें गलती से 4 आ गई थी। चारों लड़कियां ससुराल गई, काफी मुद्दत हो गई। एक दिन ब्राह्मण के दिल में आया कि जाकर देखूं कि चारों लड़कियां ससुराल में किस तरह रह रही है। पहले वह उस लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसकी अच्छी तरह औ भगत की और कहा, पंडित जी, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। आपने बाकी 3 बारातियों की परवाह ना करके मेरे लड़के के साथ अपनी लड़की का ब्याह किया। मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ। आपकी लड़की बहुत लायक है, घर का सब काम काज भी कर लेती है, लेकिन इसमें कुछ ऐब भी है। वह बिला वजह सबसे लड़ती है। घर में सब चीजें मौजूद होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घर में नहीं घूम लेती उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उसे बहुत समझाया कि तू घर घर फिरना छोड़ दे, लेकिन उसकी ये आदत नहीं जाती। ब्राह्मण ने एक ठंडी सांस ली और अपने दिल में कहा कि है तो कुतिया ही की औलाद। इसके बाद वह उस लड़की के पास गया। यहाँ भी समधी ने उसकी औ भगत की। श्रीमान जी, बाकी 3 समधियों की परवाह ना करके आपने हमें अपनी लड़की दी, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत लायक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ऐब है, वो गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़ों को 2 दिन में ही खराब कर लेती है। खाने का ढंग उसे नहीं आता। चांदी के थाल में अलग अलग परोसे हुए खाने को एक ही जगह मिलाकर चट कर जाती है। जब वो खाने बैठ जाती है, घर में कोई चीज रख देती है तो उठाकर खाने लगती है। सड़क पर कोई खचे वाला आवाज लगाता है तो उसे बुला लेती है और उसे लेकर चाट चाट कर खाती है। एक तो वह पेट की स्वर्णी है और दूसरी गंदी रहती है। ब्राह्मण ने दिल में कहा, आखिर है तो स्वर्णी की औलाद ही। उसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो गधी की बच्ची थी। यहाँ भी समधी ने उस तरह उसकी खातिरदारी की जैसे 2 समधियों ने की थी। उसने भी लड़की की तारीफ की और कहा, लड़की बड़ी सीधी साधी और भोली भाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है, चाहे किसी काम में लगा दो कभी इनकार नहीं करती, मगर यह बात जरूर है, काम आहिस्ता आहिस्ता करती है। जल्दी करने के लिए कहो तो काम खराब कर देगी। कभी कभी काम करते वक्त पड़ोसियों से बातें करने लगती है और काम करना भूल जाती है। सुस्ती इतनी है कि खाना पकाते ही सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर नहीं होता। अकल तो भगवान ने दी ही नहीं, किसी बात को बार बार समझाओ फिर भी नहीं समझती। बच्चे इसे कभी कभी गधी की बच्ची कहते हैं। ब्राह्मण ने दिल में कहा, मेरी लड़की कहाँ है तो गधी ही की औलाद। आखिर वह अपनी लड़की के पास गया। यहाँ भी इसकी और भगत हुई। समधी ने उस लड़की की बहुत तारीफ की। बोले, प्यारे भाई, आपकी लड़की बहुत शरीफ और नेक खसलत है। जिस दिन से हमारे घर आई है, हमारे घर की गरीबी दूर हो गई है। वह सुबह सवेरे सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, हमेशा नहा धोकर पूजा पाठ करती है। खाली वक्त में रामायण और भगवत गीता पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक नहीं गई। सबको बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाती है। सास ससुर पति और दूसरे बुजुर्गों की खिदमत करके वह बहुत खुश होती है। इसका बर्ताव और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के और बाहर के सब लोग उससे खुश रहते हैं। वह घर की सब चीजों की देखभाल करती है, बिला वजह खर्च नहीं होने देती। जिस चीज की जरूरत होती है वही मंगवाती है। बेकार चीजों को जमा करके नहीं रखती। अपने लिए आज तक कभी एक साड़ी लाने को भी नहीं कहा। जब हम खरीद कर लाते हैं तो कहती है, अभी इसकी क्या जरूरत थी। जेवर तो पहनती ही नहीं। वह अपने सुहाग को सबसे बड़ा जेवर समझती है। मैं इसकी खूबियों की कहाँ तक तारीफ करूं, वह तो मुजस्सम देवी है। ब्राह्मण ने दिल में कहा, आखिर है तो इंसान की औलाद। इसके बाद वह बहुत खुश होकर अपने घर वापस आ गया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।